हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर वेल, सबकी तबीयत सेहत अच्छी है। सो ये व्लॉग पर्पसफुली दो लैंग्वेजेस में होगा। आई विल से द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दिस व्लॉग इन इंग्लिश एज वेल एज इन उर्दू, so that the fans outside Pakistan, the non-Urdu speaking, non-Indian fans who don't understand Urdu, the ones who've written to me to ask about the updates of Coke Studios season 13, they also get some updates on it. और जो दीगर हमारे दोस्त हैं उनको तो मेरे व्लॉग से मिलती रहती है। बट आई ट्राई टू मेक इट इनटू अ 2-part व्लॉग। एज लॉन्ग एज आई हैव सम अदर डिटेल्स आई विल ऑल्सो पुट देम आउट देयर। बट सो फार जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि मच लाइक अदर थिंग्स कोक स्टूडियो भी कोविड-19 का शिकार हुआ है। एक तो लास्ट ईयर हमें समझ आ गया था कि रोहेल हयात इज़ नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग अ 14th August टाइप ऑफ अ कोक स्टूडियो, इज़ नॉट वेरी fond of that patriotic tone, or maybe it was just the strings formula because Rohail never started their seasons with a patriotic song. So if he has to follow that, then we shouldn't expect some sort of a grand opening this year as well. But एक चीज़ ध्यान में रखें कि जैसे कोविड-19 हुआ तो ये कोक स्टूडियो होता जो 14 अगस्त में आना था, होते होते सितंबर, अक्टूबर, और अब कहीं लगता है कि दिसंबर में शायद आ जाए। वो भी डिपेंड करता है क्योंकि वीलो एक और शो ला रहा है अपना जो कि बिलाल मकसूद प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी इसी तरह के प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा मिलेनियल ऑडियंस के लिए। सो इट विल डिपेंड व्हेन डज वीलो ब्रिंग इट्स शो इन एंड व्हेन डज कोक रिलीज, और मे बी यू विल सी दीज टू साइमल्टेनियसली releasing their music. But it will be interesting because one show will be produced by the former producer of Coke Studio, which is Bilal Maqsood, and one will be who is the founder and the current producer of Coke Studio. So because of COVID-19, the budget is much less. Before anything, I must tell you guys something, that I was offered to be a part of Coke Studio this time around, and I'm not saying it because I'm throwing a tantrum or something. Oh yes, I was offered something by Coke Studio, but it did not materialize. The reason why I'm saying this, कहने का मकसद, बताने का मकसद ये इसलिए है क्योंकि अक्सर लगता है लोगों को कि जो राइटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको हम कोई बात ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं तो वो कोट कर लेते हैं. So all the information that I'm sharing right now comes from other sources. I'm not sharing any information that was told to me directly. There could be repetition, but the reason it took me so long was to ensure that my confidentiality with the show remains, because in case I would have been a part of the show तो मैं शायद ये vlog कभी नहीं करता, but that is not the case. So first of all, there are much fewer songs this time around. Do not expect 20 or 25 songs. Expect at most 10 to 15 songs. Somewhere between 10 से 15 गाने होंगे, और वो शायद उतनी फ्रीक्वेंटली भी ना आए. शायद हर 2 वीक में एक गाना आए, शायद मंथ में 2 गाने आए, बिकॉज दे विल ट्राई टू स्ट्रेच द स्पैन ऑफ सॉन्ग्स एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि एक तो कम गाने हैं. दूसरा ये कि इस दफ़ा क्योंकि बजट कम है, कन्वेंशनल तरीके से कोक स्टूडियो नहीं हो रहा, थोड़ा सा हम कोक स्टूडियो 6 वाले फॉर्मेट पे जा रहे हैं. कोक स्टूडियो 6 was when you had a lot of international players featuring via Skype, so you will see a lot of those collaborations in this season as well. However, from what I've heard, the sound this time, supposedly because Rohail Hyatt is not under some brand pressure, this will be a very Rohail kind of sound. The sound that Rohail would probably make into a concept album, and he has chosen the artists that he frequently collaborates with. अब जैसे सनम आरवी is back, राहत फ़तेह अली खान is back, उमैर जसवाल is back, मीशा शफ़ी is back. शुजा हैदर के कुछ गाने इस्तेमाल हुए हैं. शुजा हैदर ख़ुद तो नहीं है, लेकिन शुजा हैदर ने कुछ गाने कंपोज करके कोक को दिए हैं, तो वो हैं. सपोजिटली मेरे ख्याल से साहिर अली बग्गा ने भी कुछ गाने दिए हैं, तो वो हैं. But some interesting things include Mehdi Malouf. Mehdi Malouf is expected to make his Coke Studio debut, which is गंदी सी बिल्डिंग. साथ साथ जितना मुझे पता है इनिशियल फेजेस में, क्योंकि पहले तो एक बहुत बड़ा स्केल था कोक स्टूडियो का, इट वॉज मच बिगर, लेकिन अब छोटा हो गया. लेकिन जितना मुझे पता है पहले ईमन शमून इस्माइल वॉज कंसिडर्ड फॉर कोक स्टूडियो. आई एम नॉट श्योर अब तक, क्योंकि अभी तक गानों की छांटी हो रही है, कि आई एम नॉट श्योर कि शमून ने रिकॉर्ड करवाया है या नहीं करवाया है. सो शमून इस्माइल वॉज सपोज टू बी देयर. एजाज हसन, ही इज़ अ वेरी क्लासिकली ट्रेन्ड वोकलिस्ट. ही वॉज सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ कोक स्टूडियो. नॉट श्योर if he's made it to the final cut. So
द लाइनअप इज़ इंटरेस्टिंग बट देयर विल बी लिमिटेड सॉन्ग्स. एटलीस्ट आप समझे 1-2 गाने राहत के होंगे, 1-2 गाने मीशा के होंगे, एक आध उमैर का होगा, 5-6 गाने तो इस तरह हो गए, फिर एक मेहदी मालूफ का हो जाएगा, 6 शमून आ गया तो 7, और कुछ गाने रिपीट करते करते 10-12 गाने आपके हो जाएंगे, और मे बी 15. बट आई डोंट थिंक रोहेल हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड कंजर्वेटिव विद द नंबर ऑफ सॉन्ग्स. सो दैट विल बी द केस. साउंड हाउस बैंड में कोई नहीं है, बहुत लिमिटेड लोग हैं. मे बी शायद आपको मन्नू सीज़न 6 की तरह सिर्फ बेस बजाते हुए नज़र आए. मोमो इज़ इन द US, जाफ़र इज़ नो लॉन्गर विद कोक. गम्बी अपना फेसबुक पे अपना एक प्लेटफॉर्म उन्होंने शुरू किया है, यूट्यूब पे, उस पर वो पुरानी चीज़ें डाल रहे हैं. असद अहमद हैज़ लेफ्ट कोक अ वाइल अगो, तो ही इज़ नॉट देयर. बाकी वही रोहेल की जो अपनी साउंड की टीम है, दैट साउंड टीम इज़ देयर, दे आर लुकिंग आफ्टर द साउंड, बट दिस इज़ वेरी मच अ स्टूडियो काइंड ऑफ सीज़न जिसमें सब चीज़ें स्टूडियो में होंगी, विच इज़ वाई आई फील इट विल हैव सम सॉर्ट ऑफ एन ऊम फैक्टर. क्योंकि एक तो शायद ब्रांड की तरफ से कोई प्रेशर ना हो. हालांकि रोहेल पहले भी जो आप गाने सुनते थे उनको पोस्ट में बहुत प्रोसेस किया जाता है, इतना कि वोकल्स बार बार लिए जाते हैं. मतलब एक बार तो मुझे रोहेल भाई ने ख़ुद बताया था कि आई वेंट टू मीट हिम फॉर एन इंटरव्यू एंड ही सेड कि अभी जोई और रेचल थोड़े से वोकल्स वगैरह करके गई हैं. सो वो ट्वीकिंग्स तो होती हैं कोक के अंदर. सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग. तो जितना मुझे अंदाज़ा है दिस विल बी मोर सोलफुल. थोड़ा सा विजुअल्स पे ज़्यादा ध्यान होगा, जैसे लास्ट टाइम जब वही खुदाए का BTS आया था तो आप शारों वगैरह के शॉट्स आ गए थे, तो थोड़ा सा विजुअली प्ले करने की कोशिश करें ताकि लोग जो मेंटली एक क्लॉस्ट्रोफोबिक जोन के अंदर है वहाँ से उसको निकालें. बट इफ़ यू थिंक दैट कोक स्टूडियो इज़ गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, इट सर्टनली इज़न्ट, बिकॉज जो पुरानी विजुअल टीम थी वो भी नहीं है, ऑडियो टीम के भी बहुत लिमिटेड लोग हैं. सो दे हैव बीन सिवियर बजट कट्स in Coke Studio. So this time around you can see some surprises such as Shamoon Ismail. I know for a fact that Shamoon Ismail was considered. I also know for a fact that Moru was considered in one of the previous seasons, and I wish Moru को कोई एक आध गाना मिल जाए, Shamoon को कोई एक आध गाना मिल जाए, because these guys can really push the envelope as they did for Pakistani music. तो ये है. सो दैट्स द थिंग. कुछ और भी लोग थे जिनको अपना क्या कहते हैं उन्होंने कंसिडर किया, बट आई एम नॉट श्योर वो फाइनल हुए या नहीं हुए. बट कपल ऑफ थिंग्स टू कीप दिस इन माइंड. कम गाने होंगे, कम फ्रीक्वेंसी से रिलीज़ होंगे. कब रिलीज़ हो जाए हमें नहीं पता. मुझे तो थोड़ा सा कोक के इश्तिहार को देख के ये लग रहा है कि उन्होंने कहा कि यार एक कैंपेन आ रही थी तो इसमें कोक स्टूडियो का इंट्रो डाल दें, एक एनिमेशन डाल दें कमिंग सून. बिकॉज ये एक बड़ी ट्रिकी चीज़ है कि कब इट वॉज एक्सपेक्टेड सम टाइम इन नवंबर, बट इट्स नाउ एक्सपेक्टेड. पहले सितंबर था, फिर अक्टूबर हुआ, अब नवंबर दिसंबर है. अब वो ब्रांड्स के अपने बड़े कंपटीशन है कि जी वहाँ से वीलो आ रहा है तो हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वीलो में डेफिनेटली कोई ना कोई हरकत शुरू हो गई है जो शो बिलाल मकसूद प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग दैट हाउ दीज ब्रांड्स एंड दीज बिग विग्स ऑफ म्यूज़िक गो अबाउट इन दिस सीजन ऑफ कोक. ये थोड़ा सा आपको हाफ हार्टेड लगेगा ये वाला अपना क्या कहते हैं व्लॉग, क्योंकि मैं अमूमन जब तक मेरे पास कंप्लीट पिक्चर नहीं होती मैं नहीं करता. लेकिन इतने लोगों ने मुझसे कहा कोक स्टूडियो 13 की अपडेट दीजिए, 13 की अपडेट दीजिए. सो गाइस, दिस इज़ द अपडेट फ्रॉम कोक स्टूडियो. यू हैव सनम मारवी, मीशा शफी, उमैर जसवाल, मेहदी मालूफ, एक्सपेक्टेडली शमून इस्माइल, राहत फ़तेह अली ख़ान, some of his old guys, some new artists could be there. But a very minimalistic setup, very few house band members, which means Rohail will get to spend a lot of time in the studio. So I'm expecting something interesting, something more soulful. But I think this season will be the test of Rohail Hyatt's formula, because now he has been given that room, there are fewer songs, he has more time to experiment, has more time, more space to do things. That whether he delivers or not. कोई और सवाल जवाब हो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए rafe_mahdood. आई एम ऑन इंस्टाग्राम MAHDOOD, और यहाँ पे तो आप मुझे देख ही रहे हैं. सो इफ़ देयर आर मोर अपडेट्स आई लेट यू नो. दिस इज़ फॉर ऑल माई बेचैन फैंस. ख्याल रखिए अपना.